A very good morning to all of you. So, in your business studies, there is only 10 chapters. So, in today's class, we are going to start a last chapter of your business studies, that is chapter 10, International Business. As you already know, due to COVID, your syllabus has been 30% reduced. So, in this chapter, there are also some points or the topics that are deleted from your syllabus, so we will not discuss all that topics. Okay, so in this chapter, what we are going to study, the first one is international business. What is the meaning of the international business? In the last chapter, chapter 9, we were discussing the internal trade, means trade between the geographical territory, means हम अपने कंट्री में ही क्या कर रहे हैं, विद इन दी जोग्राफिकल टेरिटरी हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं. अभी क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस. अब हमें क्या है कि हम अपनी कंट्री से अनदर कंट्री में भी क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे. ओके, सो इन इंटरनेशनल बिजनेस वी विल स्टडी द मीनिंग एंड द टाइप्स ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस. Next one is features of the external trade. Okay, so internal trade as we already discussed. So next is external trade, a trade within the or trade outside the country. Okay, feature external trade means a trade which will held with the outside the country is called the external trade. So we will discuss the external trade. What are the different problems of the international business? Difference between the external trade and the internal trade, reason for the international business versus domestic industry, कि हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस क्यों करते हैं. कुछ तो रीज़न होगा ना कि हम इंटरनेशनल बिजनेस की ओर शिफ्ट क्यों हो रहे हैं. क्या अपनी कंट्री, हमारी इंडिया इतनी कैपेबल नहीं है कि हम डोमेस्टिक गुड्स का ही बस यूज़ करें. वाई वी आर प्रेफरिंग दी अदर गुड्स फ्रॉम दी अदर कंट्री. हम अदर कंट्री से अदर गुड्स को प्रेफर क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर नीडिंग ऑल दीज थिंग्स. सो वी विल डिस्कस द रीज़न फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस. व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल ट्रेड, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. नेक्स्ट वन इज़ मोड ऑफ एंटरिंग इनटू द इंटरनल बिजनेस, मीन्स अगर इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करना है तो उसके मोड क्या हैं, सोर्स क्या हैं कि जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करेंगे. एंड द वन टॉपिक दैट इज़ एक्सपोर्ट प्रोसीजर and the import procedure. This both the topics are reduced or the deleted from your syllabus. Okay, so we will not discuss both one. Next one is principal document used for the export procedure. अगर export करते हैं हम, export और import means, export करना means अपने जो कंट्री के गुड्स को किसी और कंट्री में भेजना. import करना मतलब कोई और कंट्री का गुड क्या होगा, हमारी कंट्री में आएगा. ठीक है, तो क्या इसके डॉक्यूमेंट्स हैं. एक्सपोर्ट प्रोसीजर, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं विच विल नीडेड. नेक्स्ट वन इज़ ऑक्सिलरी डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द एक्सपोर्ट प्रोसीजर. अगर एक्सपोर्ट का प्रोसीजर में कौन से और डॉक्यूमेंट्स हैं जो यूज़ होंगे. इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज्ड इन इम्पोर्ट प्रोसीजर. अगर हम इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्टेड गुड्स को अपनी कंट्री में बुलाते हैं, मतलब अदर कंट्री के गुड्स हमारी कंट्री में आ रहे हैं, तो उसके कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो विच विल नीडेड. नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन द एक्सटर्नल ट्रेड. जो भी एक्सटर्नल ट्रेड होता है उसमें कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जिसका यूज़ होगा. एंड द लास्ट टॉपिक इज़ WTO, विच मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. So it is also deleted from your syllabus. Meaning, nature, benefit and agreement. So WTO is also deleted from your syllabus. So you don't need to study the export procedure, what is the meaning of the export and what are the different steps involved in the export procedure. Next one is what is the meaning of import and what are the different import procedure, means import procedure क्या है, as well as WTO, World Trade Organization, meaning and the objectives of the WTO, World Trade Organization, also been deleted from your syllabus. Okay, so we will not discuss all these 3 points. So let's start. Okay,
International business meaning. International business refers to the buying and selling of goods or services beyond the geographical limits of a country. It is also called the trade between the two countries. International or the external trade is of three types. First one is export, second one is import, third one is interport. Okay, re-export. It is also called the re-export. So international business refers to the buying and selling of goods or services beyond the geographical limits of a country. Whenever we are talking about the internal trade, so internal trade means buying and selling of the goods or the services within the geographical territory. Means हम जो भी goods को buy कर रहे हैं, जो भी goods को sell कर रहे हैं, वो हमारी क्या है, विद इन दी जोग्राफिकल लिमिट, हमारी कंट्री के अंदर ही क्या हो रहा है, वो गुड्स को हम परचेज और सेल करेंगे. बट इन द केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, सो वी आर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स और सर्विसेज बियॉन्ड दी जियोग्राफिकल लिमिट. जो जियोग्राफिकल लिमिट है उसके बियॉन्ड बात कर रहे हैं. मतलब अब हम विद इन दी कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम आउटसाइड दी कंट्री की बात कर रहे हैं. अब हम जो भी गुड्स को परचेज करेंगे, जो भी गुड्स को सोल्ड आउट करेंगे, so we will do for the beyond the geographical limits. So it is called the trade between the two countries. इसी को हम लोग बोलते हैं trade between the two countries. Two countries के बीच में क्या हो रहा है, trade हो रहा है. And what is the meaning of trade? Buying and selling of the goods or services. कोई भी goods और services होती हैं जितनी भी, उन सारे को क्या करना, buy as well as sell करना. Okay? So international और the external trade is of three types. ये जो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं या एक्सटर्नल ट्रेड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एक्सटर्नल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड इज सेम एज द इंटरनल बिजनेस, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ अ कंट्री. ओके, सो इट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स. ये थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ एक्सपोर्ट. ओके, एक्सपोर्ट मीन्स इट रेफर टू द सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू द फॉरेन कंट्री. मतलब एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि अपनी गुड्स को, हमारी कंट्री के जो भी गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल हम वीट ले रहे हैं, ठीक है, वीट हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ, अब उस वीट को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं टू दी फॉरेन कंट्रीज. इट इज़ कॉल्ड दी एक्सपोर्ट. मीन्स सेलिंग ऑफ द गुड्स और सर्विसेज टू दी फॉरेन कंट्री. फॉरेन कंट्रीज़ को हम जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं उसको सोल्ड आउट कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज़ इम्पोर्ट. इम्पोर्ट मीन्स रेफरिंग टू बाय गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द फॉरेन कंट्री. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, ऑयल का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है, वो सब कहाँ से आता है, इराक और ईरान से आता है. तो अब हम क्या कर रहे हैं, उन ऑयल को हम क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्री से ऑर्डर करवा रहे हैं. मतलब वहाँ से उन लोगों से बोल रहे हैं कि हमें ऑयल की नीड है. तो इसको क्या बोलेंगे, हम गुड्स और सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं फ्रॉम दी अदर कंट्रीज़, फ्रॉम दी फॉरेन कंट्रीज़. फॉरेन कंट्री से हम इनको जो बाई कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड दी इम्पोर्ट. ठीक है, एक्सपोर्ट मीन्स अपने ही गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना अदर कंट्री में. इम्पोर्ट मीन्स कि फॉरेन कंट्री से गुड्स को बाई करना फॉर दी आवर कंट्री. ओके, इंटरपोर्ट, इट रेफर्स टू द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स नॉट फॉर द कंजप्शन इन होम कंट्री बट फॉर द एक्सपोर्टिंग देम टू अनदर कंट्री. अब इसका मतलब ये है कि हम डिफरेंट कॉमोडिटी गुड्स और सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं. मीन्स अपनी कंट्री में बुला रहे हैं, ठीक है, उनको बोल रहे हैं कि क्या करो कि मुझे इतने प्रोडक्ट चाहिए यहाँ पे. अब उन प्रोडक्ट को हम लोग अपनी कंट्री में अगर बुला रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमें होम कंजप्शन करना है, मतलब हमें अपनी कंट्री में कंजप्शन करना है. हम उन कंट्री को उन गुड्स को अपनी कंट्री में इसलिए क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम उन गुड्स को क्या करेंगे, किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे. ओके, सिंपल है ना. इंटरपोर्ट मीन्स एज वी ऑलरेडी डिस्कस इट द फर्स्ट चैप्टर, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड द इंटरपोर्ट. सो एक्सपोर्ट सिंपली मीन्स सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू द फॉरेन कंट्री. कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनको फॉरेन कंट्री में सोल्ड आउट करना, उनको सेल करना. इम्पोर्ट मीन्स बाइंग द गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम दी फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री से गुड्स को बाई करना. इंटरपोर्ट और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द री एक्सपोर्ट. इसका मतलब क्या होता है कि हम दूसरी कंट्री से गुड्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं, उनसे क्या कर रहे हैं, उनसे बाई कर रहे हैं और दूसरी कंट्री में उसको सेल कर रहे हैं.
कि दोनों काम हम ही कर रहे हैं। सो अभी हम क्या हैं, एक एज अ मीडियोकर काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ब्रोकर और एक मीडियोकर की तरह हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटरमीडियरी की तरह काम कर रहे हैं, एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में। तो सिंपली इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू दी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स और सर्विसेज बियॉन्ड द जियोग्राफिकल limits of a country is called international business. Okay, so next one is, what are the nature of the external trade or the internal business? Both are the same. Okay, external trade or internal trade, both are the same. So as we can say any of them, maybe external trade or the internal trade. So nature of the external trade, international business or the international trade or the foreign trade involves two countries. The main feature of the external trade are, देखिए इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है, और इसको इंटरनेशनल बिजनेस भी बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं और दी फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं। देखिए इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। ओके, 4 नेम्स हैं इसके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 2 कंट्री इन्वॉल्व होती हैं। इंटरनल ट्रेड में क्या होता है कि बस एक कंट्री इन्वॉल्व होती है, हम जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारी कंट्री में क्या कर रही है, मूव कर रही है, किसी और कंट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसी में हम क्या कर रहे हैं, होलसेलर और रिटेलर के थ्रू गुड्स को क्या कर रहे हैं कि मूव कर रहे हैं। बट इन द केस ऑफ इंटरनल बिजनेस और द इंटरनेशनल ट्रेड और द फॉरेन ट्रेड और द एक्सटर्नल ट्रेड, इसमें क्या है, 2 कंट्रीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो द मेन फीचर ऑफ द एक्सटर्नल ट्रेड आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द 2 कंट्रीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मेन फीचर क्या हो गया कि इसमें 2 कंट्री क्या होंगी, इन्वॉल्व होंगी। सो इन इंटरनेशनल बिजनेस मिनिमम 2 कंट्रीज़ आर इन्वॉल्व्ड। बाइंग एंड सेलिंग अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ द कंट्री कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द एक्सटर्नल ट्रेड। ट्रेडिंग बिटवीन 2 फार ऑफ सिटीज़ ऑफ द सेम कंट्री कैन नॉट बी टर्म्ड एज द इंटरनेशनल बिजनेस। सो सिंपल, कैसे, इसमें ये कह रहा है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 कंट्री इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरनेशनल हम लोग बोलते हैं ना, इंटरनेशनल फ़्लाइट से, तो क्या वो मतलब हुआ, नेशनल फ़्लाइट और इंटरनेशनल फ़्लाइट, कि वो इंटरनेशनली क्या कर रही है, कनेक्टेड है। और यहाँ पे बिज़नेस टर्म हो गया, तो जो भी बिज़नेस हो रहा है, सेलिंग और दी बाइंग दी गुड्स और सर्विसेज, इट विल बी डन इन दी 2 कंट्रीज़, मिनिमम 2 कंट्रीज़। आप कोई भी कंट्री क्या है, मतलब लाइक इंडिया, वो क्या है, बस एक कंट्री के साथ ट्रेड थोड़े कर रही है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ अलग अलग उसकी डिमांड है। अब हमें पता है कि हमें ऑयल के प्रोडक्ट्स यहाँ से मिलेंगे, ये प्रोडक्ट हमें अमेरिका से मिलेंगे, ये प्रोडक्ट हमें जापान से मिलेंगे। जैसे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके, सारे टॉयज़, ये सब क्या है, 75% ऑलमोस्ट चाइना से आते हैं। तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर दी रिलेटेड टू दी इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सारे प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो भी अबंडेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है, फॉर एग्जांपल अगर वीट हो गया, एग्रीकल्चर आइटम्स में जो भी प्रोडक्शन हो गया, तो हम दूसरी कंट्री में उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, सो इन इंटरनेशनल बिजनेस मिनिमम 2 कंट्रीज़ आर इन्वॉल्व, 2 कंट्रीज़ उसमें होनी चाहिए, इन्वॉल्व होंगी। बाइंग एंड सेलिंग अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ द कंट्री, ठीक है, जो भी बाई और सेल कर रहे हैं गुड्स का, वो अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब बॉर्डर के बाहर करें, हमारा जो बॉर्डर है, जियोग्राफिकल टेरिटरी है, उसके हम बाहर करें। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द एक्सटर्नल ट्रेड, उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं। ट्रेडिंग बिटवीन 2 फार सिटीज़ ऑफ द सेम कंट्री, मतलब अगर हम ट्रेड कर रहे हैं बिटवीन दी 2 सिटीज़ ऑफ द सेम कंट्री। फॉर एग्जांपल हम इंडिया में ही क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं हम लोग इंडिया में ट्रेड, अगर कानपुर और इलाहाबाद से गुड्स क्या जा रहा है, आपका तमिलनाडु जा रहा है, सेम, या फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली से वो तमिलनाडु जा रहा है, तो ये क्या हो गया, 2 फार ऑफ सिटीज़ हो गई, दूर की 2 सिटीज़ हो गई। और उसमें क्या रहा है, कंट्री क्या है, सेम है, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड थ्रू दी सेम कंट्री, लाइक इंडिया, मतलब दोनों ही इंडिया के ही पार्ट है, बोथ आर पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो कैन नॉट बी टर्म्ड एज द इंटरनेशनल बिजनेस, वो इंटरनेशनल बिजनेस नहीं होगा। So there should be in place of, instead of same country, there should be a 2 countries. अगर यहाँ पे सेम कंट्री आ गया, दैट मीन्स वो एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस नहीं है, उसकी जगह पे क्या होगा,
2 कंट्रीज़ होगा और मोर देन 2 कंट्रीज़, मिनिमम और दी मोर देन 2 कंट्रीज़, तब होगा 2 और मोर देन 2 कंट्रीज़ अगर होता है, दैट मीन्स इट विल बी द इंटरनेशनल बिजनेस। अगर सेम कंट्री हो जाता है तो वो इंटरनेशनल बिजनेस नहीं होगा, वो क्या होगा, इंटरनल ट्रेड होगा। दैट विल बी नॉट बी एक्सटर्नल ट्रेड, दैट विल बी इंटरनल ट्रेड, वो इंटरनल ट्रेड होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ पेमेंट इन द फॉरेन करेंसी। अब ये आपको पता है कि अगर हम इंडिया में गुड्स को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मीन्स कि हम बनारस से सामान को गुजरात भेज रहे हैं, ठीक है। अब गुजरात भेज रहे हैं तो क्या हम इंडियन रुपी है जो हमारे, अब जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 2000 के रुपीज़, तो गुजरात में अगर हम लोग करेंगे तो क्या हम लोग उसको डॉलर में देंगे कि नहीं, आपको $1 है, 1 यूरो देना है आपको? हम ऐसा करते हैं, हम 1 पाउंड में देते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो होल इंडिया में एक ही करेंसी चलती है, दैट मीन्स INR, इंडियन नेशनल रुपी, मतलब इंडियन रुपी ही चलती है, ठीक है। हम सेम कंट्री में 2 करेंसी को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हम क्या यूज़ करते हैं, सेम करेंसी को यूज़ करते हैं। वही अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो क्या अमेरिका में इंडियन रुपी चलेगा? पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल नहीं है। अब वो कंट्री अलग हो गई है, उनकी जो करेंसी है दैट विल ऑल्सो बी डिफरेंट। सो अगर हम पेमेंट करेंगे, अगर हम गुड्स को डील कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं और बाई कर रहे हैं, तो पेमेंट किस में होगा? वो फॉरेन करेंसी में होगा, वो हमारे इंडियन करेंसी में नहीं होगा। हमारे उनकी अमेरिका में क्या हमारी इंडियन रुपी की कोई वैल्यू है? मतलब आप कोई भी अमेरिका में यहाँ की कोई 50 रुपीज़ ले जाके वो कह सकता है नहीं मुझे ये सामान चाहिए? कोई भी वैल्यू नहीं। आप इंडिया में ही क्या करो, उनके डॉलर को यूज़ करो। आप डॉलर को लेकर आ रहे हो, यूरो को, पाउंड को इंडिया में यूज़ करो। बनारस में जाके आप कह रहे हो कि मुझे ये सामान दे दो डॉलर में, वो क्या करेगा? उसके लिए तो जस्ट अ पेपर, वो उसको फाड़ के फेंक देगा कि कोई वैल्यू नहीं है इसकी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे अगर अदर कंट्री के साथ कर रहे हैं, दैट मीन्स वो पेमेंट और वो क्या होगा, वो फॉरेन करेंसी में ही होगा। हमारे लिए फॉरेन करेंसी क्या हो गई? US डॉलर हो गई, आपकी रेनमिंबी हो गई, और आपका ये जो है डॉलर, पाउंड, यूरो, ये सब क्या है? फॉरेन कर। अब अमेरिका और इंग्लैंड के लिए फॉरेन करेंसी क्या हो गई? इंडियन रुपी हो गई। तो ये तो एकदम डिफरेंट है। हमारे लिए वो कुछ और है, उसके लिए वो उसकी कुछ वैल्यू कुछ और है। अब अमेरिका में आप 50 रुपीज़ लेके जाओगे तो कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे 50 रुपीज़ आप लेके जाओगे तो आपको कितने सारे प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं। तो ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी। हर एक कंट्री की अपनी करेंसी होती है, ठीक है, उसकी अपनी वैल्यू होती है। पेमेंट फॉर इम्पोर्टेड गुड्स इज़ मेड इन दी फॉरेन करेंसी, ठीक है। अब पेमेंट हो रहा है, हमने कुछ इम्पोर्ट्स गुड करा है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट किसी और कंट्री से अपनी कंट्री में मंगा रहे हैं तो हम जो पेमेंट करेंगे वो फॉरेन करेंसी में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होगा कि बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज होते हैं जहाँ पे रुपीज़ को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये काम बैंक्स भी करते हैं। तो पेमेंट क्या है? इम्पोर्टेड गुड्स इज़ मेड इन दी फॉरेन करेंसी। जो हम पेमेंट करेंगे, हमने गुड्स उनसे मंगाया बाहर से, तो हम जो पेमेंट करेंगे वो किस में होगा? वो फॉरेन करेंसी में होगा। एंड पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट इज़ ऑल्सो रिफर्ड इन दी फॉरेन करेंसी, और सॉरी, पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट इज़ ऑल्सो रिसीव्ड। और जो हम पेमेंट करेंगे एक्सपोर्ट का, मतलब हम अगर अमेरिका में सामान भेज रहे हैं तो हम उसका पेमेंट इंडियन रुपी में नहीं करेंगे, हम उसका किस में करेंगे? डॉलर में करेंगे। जब हमको सामान मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, हम उसका पेमेंट क्या करेंगे? उसमें हम लोग फॉरेन करेंसी में करेंगे, और जो पेमेंट रिसीव भी करेंगे वो भी क्या होगा? फॉरेन करेंसी में होगा। पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं, कोई भी गुड्स को भेज रहे हैं, तो पेमेंट वो किस में होगा? फॉरेन करेंसी में ही होगा, सो दैट इट विल बी कन्वर्टेड। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो दीज सम फीचर्स ऑफ द एक्सटर्नल ट्रेड। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम्स ऑफ द इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, हाँ, यस।
So it means the problem of the international business. What are the different problems which is related to the international business? First one is legal procedure, second is restrictions, third one is high risk, fourth one is different languages, and fifth one is arrangement of the foreign currency. ठीक है, ये these all are the some problems of the international business. International business की ये सारी problems होती हैं. So first one is legal procedure. Import or export of goods involves a lengthy and complicated procedure. Prior permission of the government has to be obtained before exporting or importing goods or services. One has to fill many documents, get custom clearance, conversion of rupee into the foreign currency, booking of ship, etc. All these are time consuming activities. Okay. इट मीन्स कि अगर हम कोई भी लीगल प्रोसीजर कर रहे हैं, मतलब अगर हम गुड्स को इंडिया से फॉरेन कंट्री में उसको भेज रहे हैं, तो ये इतना सिंपल नहीं है जितना सुनने में लग रहा है कि यहाँ से प्रोडक्ट बाहर जा रहा है. इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट अगर गुड्स कोई किया जा रहा है तो इट विल लेंदी प्रोसेस और द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इसमें होती हैं और बहुत लेंदी प्रोसेस होता है. ऐसा नहीं है कि आज आप सोचें कि गुड्स को हमें बाहर एक्सपोर्ट करना है तो बस आज ही स्टार्ट हुआ वो आज ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. इसमें बहुत टाइम टेकिंग होता है. सो इट इज़ वेरी लेंदी एज वेल एज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर. प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ टू बी ऑब्टेन. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा. किससे? गवर्नमेंट से. ऐसा नहीं है कि आपको क्या है, आपको बाहर गुड्स भेजना है, आप उसको क्या कर दोगे कि ऐसे उठा के भेज दिया. नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि हमें ये गुड्स हमारे यहाँ प्रोड्यूस हुआ है एंड आई वांट टू सेंड दीज प्रोडक्ट टू दी डैट कंट्री, जिसमें कंट्री का आपको भेजना है बिफोर एक्सपोर्टिंग और द इम्पोर्टिंग गुड्स. अगर इम्पोर्ट भी करना है या एक्सपोर्ट भी करना है, दोनों ही कंडीशन पे आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा. ठीक है. और सर्विसेज, वन हैज़ टू फिल मैनी डॉक्यूमेंट. और क्या करना पड़ेगा, जो भी करना चाहता है उसको पहले डॉक्यूमेंट्स को फिल करना पड़ेगा कि वो कोई भी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए, वो गुड्स कितना ज़्यादा, प्रोडक्ट कैसा है, क्वालिटी है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, टोटल उसकी प्राइस कितनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करना पड़ेगा. कस्टम क्लियरेंस मीन्स जो कस्टम ड्यूटीज़, जो कस्टम जहाँ से गुड्स को सोल्ड आउट किया जाता है, मतलब जहाँ से गुड्स को शिप्स के थ्रू उसको भेजा जाता है, उसके थ्रू भी क्लियरेंस कराना पड़ेगा. वहाँ से भी जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा कि आप ये गुड्स को उसको भेज सकते हो या नहीं भेज सकते हो. कन्वर्जन ऑफ रुपी इनटू द फॉरेन करेंसी. अब इंडियन रुपी को क्या करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. आप क्या कर सकते हो, अपनी रुपी को तो नहीं करोगे, क्योंकि अभी हमने एक उसका फीचर्स और दी नेचर पढ़ा कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी पेमेंट होगा वो हम फॉरेन करेंसी में ही करेंगे. तो हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे. बुकिंग ऑफ शिप्स, जिसके थ्रू वो कोई भी प्रोडक्ट जाएगा, अगर शिप के थ्रू जा रहा है, वाटर के सोर्स के थ्रू, तो शिप को बुक करना पड़ेगा. ठीक है कि अब उसमें भी शिप को भी क्या है कि पूरे वो डॉक्यूमेंट चेक करेगा, प्रोडक्ट कैसे हैं, क्वालिटी कैसे हैं, कि वो ऐसा तो नहीं कि डैमेज हो जाएं, उसके इंश्योरेंस होते हैं, एज वेल एज़ कि कितने दिन में पहुंचेगा, कितने टाइम को वो सारे गुड्स क्या हो जाने चाहिए, वो लोड हो जाने चाहिए, उसका पीरियड ऑफ टाइम कि कितने दिन में, अगर आज की डेट में निकलेगा तो कितने दिन में पहुंचेगा. प्रॉपर ये सारे क्या है, बुकिंग करनी पड़ती है. सो ऑल दीज आर टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़. ये सारे क्या हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ हैं. ये इतना सिंपल है नहीं जितना वो सिंपल ऐसे लग रहा है कि बहुत सिंपल है इंटरनेशनल बिजनेस करना. ठीक है. तो ये सारे प्रोसीजर उसमें करने पड़ते हैं. नेक्स्ट वन इज़ रिस्ट्रिक्शंस. द इंटरनेशनल बिजनेस इज़ नॉट एज फ्री एज द इंटरनल ट्रेड. सिंपल. आपको पता है कि अगर आप दूसरी कंट्री में, आप ये सोचो कि अगर आप एक कंट्री में, अगर आपको यहीं पे किसी और स्टेट में जाना है, तो क्या इतने कॉम्प्लिकेटेड आपको फेस करने पड़ते हैं कि ये वीज़ा बनाओ, पहले उस पर चेक करवाओ, तो ये सारे करने पड़ते हैं. तो वैसे ही अगर प्रोडक्ट भी, कोई गुड्स और सर्विसेज भी कन्वर्ट होंगे, मतलब कन्वर्ट होने का मतलब है कि शिफ्ट होंगे, मूव होंगे
तो वो इतना फ्री, इतना सिंपल नहीं होगा जैसे इंटरनल ट्रेड होता है कि हम यहाँ से गुड्स को कर्नाटका और साउथ इंडिया भेज दिए। नहीं, इतना सिंपल नहीं होगा। तो इंटरनेशनल बिजनेस इज़ नॉट एज फ्री एज इंटरनल ट्रेड। वो इंटरनल ट्रेड की तरह इतना फ्री नहीं है। इन केस ऑफ सेवरल आइटम्स एक्सपोर्ट और द इम्पोर्ट लाइसेंस हैज़ टू बी ऑब्टेन। अब क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी आइटम्स को आपको इम्पोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, उन दोनों कंडीशन में आपको लाइसेंस चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना लाइसेंस के थ्रू आप कुछ भी काम कर सकते हो। लाइसेंस क्या होता है, गवर्नमेंट के थ्रू एक सेंक्शन कर दिया जाता है कि ये सारे काम लीगली हो रहे हैं, इलीगल काम नहीं हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या है कि लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। मैनी रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन एक्सपोर्ट और द इम्पोर्ट ऑफ द सर्टेन आइटम। बहुत सारे ऐसे आइटम्स है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देती है कि ये रिस्ट्रिक्शन। तो इससे क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इतना ज़्यादा ईजी नहीं हो सकता कि आप ईज़िली इंटरनेशनल बिजनेस को गो थ्रू कर सको। नेक्स्ट वन इज़ हाई रिस्क। The risk involved in international business is much higher than the internal trade. Due to long distance, there is risk of damage of goods in transit. There is also the risk of the fluctuation in currency conversion rate. The exporter must take marine insurance policy before sending the goods through ships. Okay. Sorry. Yes, high risk. The risk involved in the international business is much higher than the internal trade. जो रिस्क इन्वॉल्व होता है किसमें, आपका इंटरनल बिजनेस में, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस में जो भी रिस्क इन्वॉल्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल ट्रेड। ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से देयर इज़ रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। वहाँ पे रिस्क क्या है कि जो भी गुड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रहे हैं, ट्रांजिट हो रहे हैं, उनके डैमेज होने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। देयर इज़ रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट होने में गुड्स की डैमेज होने की चांसेस और रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। देयर इज़ ऑल्सो द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इन करेंसी कन्वर्जन। और एक ये भी रिस्क हो जाता है कि जो भी करेंसी है उसके कन्वर्जन में, मीन्स की फ्लक्चुएशन का, अगर यहाँ पे हमने डिसाइड किया है या अगर ये चल रहा है कि अगर $1 वो लोग का है तो हम 75 रुपीज़ देंगे, हमारा 75 रुपीज़ जाना उनके $1 के इक्वल है। सोच लीजिए वैल्यू। तो इसका मतलब है कि अगर वो इसका भी रिस्क है कि करेंसी हमने गुड्स यहाँ से सोल्ड आउट कर दिया, मे बी वो गुड्स आपका 15 और 20 डेज आफ्टर 20 डेज़ वहाँ पे रीच आउट कर रहा है, पहुँच रहा है, तो वो $1 में भी वो 80 हो जाए। तो ये भी क्या होता है, बहुत बड़ा रिस्क होता है कि यहाँ से हमने तो भेजा 75 में, अब हमारे लिए तो एक कॉस्टली हो गया ना। अब पहले हमको 75 रुपये पे करना था, अब हमको 80 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। तो इसका भी क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। द एक्सपोर्टर मस्ट टेक मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। जो भी एक्सपोर्टर है, जो भी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको मरीन इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है। मरीन इंश्योरेंस आपने पढ़ा था कि कोई भी शिप्स के थ्रू गुड्स अगर जाते हैं तो वो इंश्योरेंस होता है। तो बिफोर सेंडिंग द गुड्स थ्रू दी शिप्स के थ्रू गुड्स को सेंड करने से पहले उसको मरीन इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस। Different languages are spoken and written in the different countries. A trader must appoint someone who can read and understand the foreign language to read the price list, terms and condition of trade, etc. Okay. So different language are spoken and written in the different country. अभी क्या है कि हर एक कंट्री की लैंग्वेज क्या है, वो डिफरेंट है। इंडिया की अलग है, अमेरिका जाएंगे वो अलग है, चाइना की है वो अलग है। अभी ये क्या है कि ट्रेडर मस्ट अपॉइंट समवन, ट्रेडर को क्या, जो ट्रेड कर रहा है उसको कोई ऐसे इंडिविजुअल को अपॉइंट करना पड़ेगा हु कैन रीड एंड अंडरस्टैंड दी फॉरेन लैंग्वेज। वो क्या है, वो ईज़िली वो फॉरेन लैंग्वेज को रीड भी कर सके, पढ़ भी सके और अंडरस्टैंड भी कर सके। कोई अगर उसके सामने आ रहा है, कोई ट्रेडर, फॉरेन ट्रेडर, वो उससे बात कर रहा है या उसको कोई भी डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट शो कर रहा है, तो ऐसा क्या हो कि वो उसको समझ में ही नहीं है, तो वो कुछ भी उसको बता देगा, वो कुछ भी समझ लेगा। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेडर को अपॉइंट करना पड़ता है किसी इंडिविजुअल को, किसी पर्सन को, कि जो वो सारे डॉक्यूमेंट को ईज़िली रीड भी कर सके एज़ वेल एज़
फॉरेन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड भी कर सके, टू रीड द प्राइस लिस्ट कि कमोडिटी की कितनी प्राइस है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, क्या डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन है ट्रेड के, वो सारे को समझने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ अरेंजमेंट ऑफ द फॉरेन करेंसी। सो फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ द importer has to arrange foreign currency which involve the lengthy procedure। अभी देखिए हमने ये पढ़ा था कि ये क्या होता है, बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है, लेंदी प्रोसीजर होता है एज वेल एज हमें क्या है, गुड्स को अगर किसी और कंट्री में सेंड करना है तो पेमेंट क्या होगी, वो फॉरेन करेंसी में होगी। अब उसके लिए फॉरेन करेंसी को लेने के लिए हमें अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो ईज़िली अवेलेबल हमें हो जाएगा, उसका अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। सो फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट, अगर जो भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट आए हैं, इम्पोर्ट हुए हैं कंट्री में हमारे, इम्पोर्टर हैज़ टू अरेंज द फॉरेन करेंसी। अब एज अ इंडिया भी क्या है, इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर को क्या करना पड़ेगा, अरेंज द फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, विच इन्वॉल्व दी लेंदी प्रोसीजर। ये क्या होता है, बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है। इट्स नॉट सो सिंपल कि आपको बस फॉरेन करेंसी चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी, इसके लिए आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा कि आपको ये मनी क्यों चाहिए, किस वर्क के लिए चाहिए, ये कोई लीगल वर्क है और इलीगल वर्क है, तो सारी इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती है। तो फॉर मेकिंग, कोई भी पेमेंट मेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, अरेंजमेंट क्या होगा, वो भी इट विल बी ऑल्सो इन दी फॉरेन करेंसी, वो फॉरेन करेंसी में होगा। तो व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, तो व्हाट वी हैव डिस्कस, फर्स्ट वन इज़ लीगल प्रोसीजर। लीगल प्रोसीजर होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए गुड्स को, डॉक्यूमेंट्स को फिल करना पड़ेगा, कस्टम से क्लियर कराना पड़ेगा, अपने रुपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, शिप को बुक करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शंस में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट हैज़ पुट टू मच रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इम्पोर्टिंग और द एक्सपोर्टिंग द गुड्स। तो सबसे पहले इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, और मैनी रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन द एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट ऑफ द सर्टेन आइटम पे वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी है। नेक्स्ट वन इज़ हाई रिस्क, यहाँ पे क्या है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। ओके, दिस रिस्क इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल रिस्क बहुत ज़्यादा है कि जो गुड्स क्या हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में डैमेज होने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, कि कोई भी गुड्स यहाँ से चला उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, वो डैमेज हो गया, पेरिशेबल गुड्स है, और करेंसी कन्वर्जन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, और मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेना पड़ता है जब कोई भी गुड्स क्या है थ्रू शिप्स के थ्रू वो गो थ्रू हो रही हैं। डिफरेंट लैंग्वेज मीन्स कि एवरी कंट्री हैज़ देयर डिफरेंट लैंग्वेज। ओके, तो इसको जो भी ट्रेडर हैज़ टू अपॉइंट समवन हु कैन रीड और अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द अदर कंट्री वेयर द गुड्स आर सेंडिंग। दे कैन read the price list of the product, terms and rules and regulation of the trade. Okay, next one is arrangement of the foreign currency। तो जो भी पेमेंट होगा गुड्स का वो किस में होगा, फॉरेन करेंसी में होगा। तो अगर कोई भी इम्पोर्टेड गुड्स आते हैं, इम्पोर्टेड गुड्स आने का मतलब है कि पेमेंट किस में होगा आपका, मैंने बताया कि फॉरेन करेंसी में होगा। तो इम्पोर्टर हैज़ टू अरेंज दी फॉरेन करेंसी उसको अरेंज करना पड़ेगा, और विच इन्वॉल्व्स लेंदी प्रोसीजर। वो क्या होता है, बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है, इतना ईजी नहीं होता कि फॉरेन करेंसी का अरेंजमेंट हो सके। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज़ क्लास। वी विल कंटिन्यू फर्दर इन दी नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।